Hi guys, my name is Parth. I am studying in class 12th. My bio teacher, Mr. Niranjan Ram sir. So in this video, we will be discussing about the term genetics and some important terminology of the chapter Principle of Inheritance and Variation. So let's start the video. Now, what is genetics? The branch of science which deals with the study of heredity and variation. Now, what is heredity? Heredity means the transmission of characteristics from parents to the offspring. Okay. Now, what is variation? Variation means the characteristics difference between parents and offspring. Okay. So now the term genetics was first given by Batson in 1906, but the father of genetics is Gregor John Mendel. So in the next we will be discussing about some terminology. So let's start with the important terms of this chapter. If you understand these terms, the chapter will be easy and will go smooth to you. Okay. So let's start. First term is inheritance. Now inheritance means the process of transmission, the process of transmission of characteristics from one generation to another generation. Now please don't confuse with heredity and inheritance. Heredity means transmission, but inheritance means process of transmission. So now we'll go for the next term. Now I am dealing with the next term first. In humans, in diploid condition or 2n, okay, in diploid condition there are 46 chromosomes. For simplicity, I am just showing you C for chromosome. In diploid condition there are 46 chromosomes in 23 pairs. Okay, 46 chromosomes are there in 23 pairs. Now in these 23 pairs, 22 pairs of chromosomes are known as homologous chromosome. Homologous chromosome. And the 23rd pair is known as sex chromosome. So now I'm going to deal with this homologous chromosome now. Now in homologous condition, the chromosomes, for simplicity I'm just showing you two chromosomes. These two chromosomes will have same size. Okay, first condition in homologous is these chromosomes will have same size. Okay, and also will have same position of centrole. For example, this is the centrole of one chromosome, and the next pair of chromosome will also have the same position of the centrole. Okay. So this is about homologous. Now we will deal with the sex chromosome. Sex chromosome. In females there are X. Okay. In males there are X, Y. Okay. These are sex chromosomes. Okay. These are two. Okay. Now where this X chromosome
is larger than the Y chromosome. Y chromosome. I am showing the now I am showing the chromosome of X. Okay, for X, I am taking only one chromatin. Okay, this is X chromosome, and I am showing this is the Y chromosome. So this was all about the homologous and sex chromosome. Okay, now I am going to deal the next term in this chapter, principle of inheritance and variation. Okay, the next term is genotype. Now what is this genotype? Genotype means the arrangement of gene. Arrangement of genes. To simple use, we can see genotype is known as arrangement of genes. Now how this arrangement, I will tell you this in detail. Okay, for example, I am taking a gene. मैंने अपने बॉडी में से एक जीन को निकाला. ओके, मैंने अपनी बॉडी में से जो डीएनए है उसमें से जो जीन है उसको हम सेगमेंट ऑफ डीएनए कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे अपनी बॉडी में से मैंने एक जीन लिया. ओके, इस जीन, ये जो जीन है वो हाइट का जीन है. ओके, हाइट का जीन है. ओके, अब मेरा हाइट टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है. ओके, मेरा हाइट जो जीन है, मेरा हाइट टॉल भी हो सकता है या शॉर्ट भी हो सकता है. ओके, टॉल भी हो सकता है या शॉर्ट भी हो सकता है. तो सिंपली हम टॉल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और शॉर्ट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी. तो आप देख सकते हैं ये अरेंजमेंट जो हो रहा है स्मॉल टी या कैपिटल टी का, उसको हम सिंपली जीनोटाइप कहते हैं. ओके, नाउ हम नेक्स्ट टर्म को जो देखने वाले हैं तो उसको हम फिनोटाइप कहते हैं. फिनोटाइप. अब ये फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस. सिंपल लैंग्वेज में हम इसको फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं. बुकिश में मतलब बुक लैंग्वेज में इसको पूरा डिटेल में दिया है. मतलब इसी को एक्सप्लेन किया है, पर उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स को यूज किया. तो मैंने इसको एक सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको इसको बता दिया, फिजिकल अपीयरेंस. फॉर एग्जांपल, मैंने दो ह्यूमंस को लिया. ओके, दो ह्यूमंस को लिया. ओके, दो ह्यूमंस को लिया. इसका हाइट टॉल है, इसका हाइट टॉल है, इसका हाइट शॉर्ट है. ओके, तो जब आप देख सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस है इनका, ये टॉल है और इसका हाइट शॉर्ट है. जीनोटाइप में क्या था, हम अरेंजमेंट ऑफ जीन दिखा रहे थे. हम लोग एक्सप्रेशंस में दिखा रहे थे कि ये टी है, इसका हाइट ये है. तो ये जो ये दिख रहा है ये जीनोटाइप कहते हैं. जीनोटाइप इसको कहते हैं. फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस. ये जो टॉल है या शॉर्ट है उसको हम फिजिकल अपीयरेंस कहते हैं. ओके, नाउ द लास्ट जो हम देखने मतलब जो इसमें हम लोग लास्ट देखने जा रहे हैं वो है एलील्स. अब ये एलील्स क्या होता है? एलील्स सिंपली क्या होता है? एक सिंपली स्लाइटली different form of a gene of same gene. मैंने आपको पहले बोला था, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था. फॉर एग्जांपल, मैंने एक जीन लिया. ओके, उसका हाइट टॉल भी हो सकता है या शॉर्ट भी हो सकता है. तो ये जो टॉल है और ये शॉर्ट है, ये सब
इसको इनको हम एलील्स कहते हैं, मतलब कि ये जीन है, ये टॉल और ये शॉर्ट है, इनको हम साथ में एलील्स कहते हैं। ओके, एलील्स मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। ये ठीक है ना, मैंने इसका जीन हाइट का जीन लिया, तो ये दो एलील्स मेरे को दिखा रहे। ये जो जीन का है, ये जो जीन है इसका टॉल वर्जन भी हो सकता है या शॉर्ट वर्जन भी हो सकता है, तो इसको हम एलील्स कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। ओके, सिंपल लैंग्वेज में इसको हम ये कहते हैं। तो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन। कंडीशन। ओके, कंडीशन। ये होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल अली होते हैं। अलील्स को हम होमोलोगस कंडीशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको सोच रहे हो कि आइडेंटिकल अलील्स क्या होता है। आइडेंटिकल अलील्स मतलब मान लो ये है, ये अगर ये टर्म आ गया तो आप समझ जाना कि ये होमोलोगस कंडीशन है। कि ये जो टी है, मतलब जो सेम अलील्स है ना, इसका आप देख सकते हो सेम अलील्स दिख रहे हैं आपको, ये अलील्स सेम अलील्स दिख रहे हैं ना, मतलब ये जो ये भी कैपिटल में लिखा है और ये भी कैपिटल में लिखा है, तो इनको हम साथ में इसको हम कह सकते हैं कि होमोजोगस कंडीशन में है। सिंपली आप इसको भी देख सकते हैं। ओके, ये भी एक होमोजोगस कंडीशन में। हम दूसरा देखने जा रहे हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, इसमें नॉन आइडेंटिकल अलील्स होते हैं। नॉन आइडेंटिकल अलील्स होते हैं। नॉन आइडेंटिकल अलील्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने बड़ा टी, कैपिटल टी और शॉर्ट टी को लिया, और ये तो इसमें आप देख सकते हैं ये आइडेंटिकल नहीं है। एक तो एक कैपिटल में है, मतलब एक डोमिनेंट है, सॉरी, जो इसमें इस कंडीशन में टी इज डोमिनेंट ओवर टी, मतलब ये डोमिनेंट कंडीशन में, ये रिसेसिव कंडीशन में। ओके, ये आप देख सकते हैं नॉन आइडेंटिकल अलील्स है, मतलब कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, सो इस चैप्टर में इतने ही, मतलब इतने ही टर्मिनोलॉजी है, इतने ही टर्म्स है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से चल जाएगा। और फॉर स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।